ملک قیصر صاحب تساں غور نہیں کیتا کہ ملک عمران صاحب آئیے تک چپ نے؟ وہ اصل چ وہ نا اے بھی وہ بزی شک نے، ہے وچ سان وہ مصروف نے، وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے نے، وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے نے اج کچھ دنوں دے تے انہاں نوں لبدی نہیں بھی تو بس جنونی ਮੈਨੂੰ ہے۔ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50 ਯੂਰੋ ਭੇਜਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? الحمدللہ اللہ دا شکر ہے، میرا یوسفی دا، حیدر وڑیچ دا، عبداللہ دا تے ملک قیصر دا ذہن نا بڑا میچ کر گئی ہے، بس ایک دوسرے دے اشارے بھی سارے کو سمجھ رہے، صحیح گل ہے واقعی۔ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਮਲਕ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਊਂਟ ਗੱਲ ਸੈਂਡ ਕਰਵਾ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦਾ ਜਿਆਦਾ ਐਡਰੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਭੇਜ ਛੋੜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂ اور چیما صاحب دا ਇਹਨਾਂ ਦਾ نمبر کسے کول ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆئی چیما صاحب ਕਿਹੜਾ کسے ਚੀਮਾ فرینڈ ہے ਸਾਹਿਬ نا؟ چیما صاحب ہے نا کسے دے میری فرینڈ؟ فرینڈ تھی بھائی، ਕਿਹੜੇ بھیجو ਚੀਮਾ نا لائیو ਸਾਹਿਬ شیئر ਮੇਰੇ کرو، ਵੀ ਫਰੈਂਡ بلاؤ۔ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਮ ਸੁਣੀ ਹੈ। ہاں آکھو کمن صاحب آئے نے آپ ਗੁੰਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ۔ دس دیو انہاں نوں اے بھی دس دیو نال کہ رسی خرید لئی ہے رسی۔ ملک دیو عمران ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਸ਼ਦਾਮ ਵੀ ਭੇਜੋ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁਨੇ ਬਦਾਮ ਭੇਜੋ, ਪਿਸਤੇ ਭੇਜੋ, ਖਾਸ ਆਗ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਲਓ ਨਾ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੰਮਿਆ। ਲਾ ਹੱਥ ਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਐਸਏ 1 ਵਜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7 ਵਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਉਹ ਰਾਤੀ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਰਾਤੀ ਯਾਰ 11 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤੈਅ ਸੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੜ ਕਰ ਦੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਪਿਕ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 74 ਦੀ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਦ ਵੜੈਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਗੀਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ। ਉਹ ਅਲੀਮ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਗੀਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀਮ ਥੱਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਹ ਥੱਲੇ ਲਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਵਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਮਲਕ ਤਲਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੈੱਟ ਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਖਜੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਲਾ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਬਸ। ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦੁਬਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਨੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗਏ ਨੀਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਓਕੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਦਾ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਬੈਠਾ, ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, 50 ਯੂਰੋ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ।
ओके दिलई जी मुझे भाई जरा बात सुनिएगा 2 मिनट की करनी है फिर मैं ਹੁਕਮ चला ਹੁਕਮ जाऊंगा ਹੁਕਮ इंशाल्लाह आप ਹੁਕਮ लोगों को ਹੁਕਮ जारी ਸਰਕਾਰ रखना ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ जी सुनना। बेशरम आदमी बेवकूफ आदमी पहले पहले जब आया था ना वो अजीम बट वो आईडी बना के आया था ला खत्म नबूवत। उसको मुझे समझाना पड़ा कि ये जो तुमने आईडी बनाई हुई है ना ला खत्म नबूवत, ना सिर्फ ये कि तुम कुरान की आयत के खिलाफ बात लिख रहे हो ला, बल्कि मिर्जा साहब ने भी जो खत्म नबूवत को तस्लीम किया हुआ है जगह 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 जगह, ना सिर्फ ये कि अजाला व आम में बल्कि दूसरी जगहों के ऊपर भी, तो नबूवत आईडी बना के आना जायज है। वो गया और शुक्र है उसको, उसने किसी से पूछा, उन्होंने उसको बताया कि बहुत बड़े पागल हो अगर तुमने इस तरह की आईडी बनाई है। फिर उसने उस ला को हटा के खत्म वो यूनिवर्सिटी आईडी बनाई है, लेकिन दिमाग तो अंदर गधे का वही है ना। अच्छा, पहले दिन जब वो आया उसको मैं पूछ रहा था बार बार कि तुम ये जो खातमुन नबीन की डेफिनेशन कर रहे हो मोहर, ये मोहर किस चीज की है? इजरा तस्दीक की है, खातमियत की है, किसी और चीज की है? उनके लिए जान अजाब में आई हुई थी कोई भी फैसला करना कि किस चीज की है। फिर मैंने उसको दिखाया उस दिन कि ये मोर जो है ये खातमियत की, मिर्जा साहब ने खुद तस्लीम किया हुआ है कि ये मोर खातमियत की है, ये मोर खातमियत की है, ये मोर खातमियत की है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 212। लेकिन उसका हमारा जो एक्चुअल कलाम था ना वो तो मिर्जा साहब के कुफरिया कलमात के ऊपर था, जो मिर्जा साहब ने कहा था कि जनाब अंग्रेज की इताअत और अल्लाह की इताअत मेरे दीन के 2 हिस्से हैं और एक को छोड़ने से दूसरे का छोड़ना लाजम मजूम आता है। ये वाली इबारत हम बार बार उसको पढ़ के सुना रहे थे। उस पे उसने बिल्कुल कुफर बका, सवाल मेरा ही था, सवाल उसने मेरा ही कुफर था। बका कि जनाब ये जो आयत है ना फिर निकाल दे कि जिसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया उसने बंदों का भी शुक्र अदा नहीं किया, या ऑपोजिट वे, जिस तरह भी आपने इसका मतलब लेना है। अच्छा, उसको अव्वल तो जाहिल को पता ही नहीं था कि ये आयत है ही नहीं। उसको कहा ये आयत है, उसने कहा मैं दिखाता हूँ, दिखाने गया मिली नहीं। गूगल में भी सर्च मारी, पता नहीं कहाँ से उसको हदीस मिली नहीं। आगे उसने कहा इब्ने माजा 35, यही याद ना आपको? मैंने रेफरेंस दे दिया, मुझे पता है ये इब्ने माजा की रिवायत ही नहीं है, ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत है 4811 नंबर, और इसमें अल्फाज ही और है। वहां पर अतात की बात हो रही है गवर्नमेंट की, और उसको अल्लाह के साथ मिलाया जा रहा है और लाजम व मलजूम कहा जा रहा है और अपने मजहब के हिस्से बताया जा रहा है। जबकि यहाँ पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है उसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। वैसा ही है, मतलब कि भाई जो बंदों का शुक्र अदा नहीं ना करता वो इसी तरह के अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। इसमें ना तो लाजम व मलजूम एक दूसरे के साथ कहा जा रहा है, ना अतात का हुक्म दिया जा रहा है, सिर्फ शुक्र अदा करने की मिसाल दी जा रही है। ठीक है, मिसाल से कि भाई अगर कोई थैंकफुल नहीं है, नॉर्मली अगर कोई उसके साथ अच्छाई काम करता है वो लोगों का, वो फिर वो बंदा अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता होगा। और इसको कई लोग अदर वे लेते हैं कि जिसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता वो लोगों का भी शुक्र अदा नहीं करता। दोनों सेंसों के अंदर ना तो अतायत का हुक्म है और ना ही एक दूसरे के साथ कोई इस तरह की चीज है कि भाई एक के ऊपर ईमान नहीं लाए तो दूसरा इल्जाम छूट जाएगा, जिस तरह मिर्जा साहब कह रहे थे। ना तो उसको वो हदीस मिली, वो हदीस में भी झूठा साबित हो गया। उल्टा वो जो बात कर रहा था वो बात भी उसके जवाब में वो जो ला रहा था हजरत यूसुफ की आयत बार बार, उसमें भी वो झूठा पड़ गया कि वो हजरत यूसुफ वाली आयत भी पेश नहीं कर सका, उसमें मोहसन भी नहीं दिखा सका और ना ही शुक्र दिखा सका जिस तरह का उसका मुद्दा था। वो बुरी तरह वो पहले दिन ही वो फेल हो गया था। मुझे पता था ये बंदा बात नहीं कर सकता। फिर इसने मजीद परसों शाह साहब से छितर खाए हुए थे। शाह साहब ने इसकी चंगी भली छितरौल की। 1.5 घंटे के बाद इनकी गुफ्तगू 1.5 घंटा चली उस दिन सीकर की ब्रॉड के ऊपर। उसके बाद उनके अपने लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भट्ट साहब आपने कोई दलील कोई आयत पेश भी करनी है, आप तो बड़े नारे मारते थे आयत आयत आयत। हालत ये है कि उसको मकर लफ्ज कहना नहीं आता, मकर को वो मुकर कहता था। जिस तरह वो लोगों ने कहा मूतर, मतलब और मुकर भी उसने इस तरह कहा कि लोगों को मूतर समझ आता है, जो जारी बात है मिर्जा साहब के हवाले से मूतर उन्होंने इतना मशहूर कर दिया हुआ है मुफ्ती मुबशर साहब ने कि मूतर से मिलती जुलती भी कोई बात कर रहा हो तो बंदा, मतलब उसको मकर लफ्ज नहीं कहना आता, उसके साथ कुरान के ऊपर क्या बहस करनी है। तो कल वो रात को वही हुआ, शाह साहब आए, शाह साहब ने ओपनिंग राउंड ही खेला, लेकिन वो यार ये मैच मिस फिट कैटेगरी के हैं। वो ना लाइट वेट कैटेगरी में आता है बल्कि लाइट फेदर वेट में भी नहीं आता वो बंदा, और आप उसका मुकाबला करा रहे हैं
हैवी वेटों के साथ, जफरुल्लाह शाह साहब के साथ, पीर अस्कानी के साथ, है कभी अपने सैयद ओली स्पिरिट के साथ, तो वो फिर बेचारे के साथ यही होना है ना। तो बहरहाल ये हदीस मेरे पास मौजूद थी, लेकिन मैं उस वक्त ये कह रहा था कि क्योंकि तुमने दलील बना के पेश की है, तुम करो, तुम बताओ कौन सी हदीस है जो उस अल्फाज के मुताबिक पेश आती है। ये हदीस जो सामने लगी हुई है जो तुम कोट कर रहे हो, ये तो ना मिर्जा साहब की इबारत से रिलेटेड है, ना ये मिर्जा साहब के दावे को इंड्रोस कर रही है। तो समझ आ गई है आपको नजब भाई? शुक्रिया बिल्कुल यार। वो वैसे दूसरे हमारे यानी कि खजूरों वाले अपने राव नईम साहब हैं, उनसे को किस्से ताजे ताजे सुनते हैं। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪੀਰ ਅਸਕਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਸਕਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਅਰੇਂਜ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾੜਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਆਇਤ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਰਾਓ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 2024 ਹੈ 344 ਖੋਲ ਲਓ ਯਾਰ, 344 ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਾਰਗ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਸੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਵੇ। ਵਾਹ, ਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਲ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਕਾਫਰੂਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਲ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਕਾਫਰੂਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ। अल्लाह ताला ने तो बकायदा लानत भेजी है झूठियां दे, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आप लोग इनके साथ लगे रहे, बेशक कुरान हदीस के ऊपर बहस। मेरा तो मैंने जो अपनी जिंदगी का निचोड़ निकाला हुआ है, जितना मर्जी इनको कुरान बता दो, जितनी मर्जी इनको हदीस बता दो, इन्होंने कुरान और हदीस की तोहीन नहीं करनी है। तो इनको मिर्जा साहब का कलाम पेश करो, है तो ये शातिमी, तोहीन करे ज्यादा मिर्जा साहब के कलाम की करे ना। अब देखे ना मिर्जा साहब ने उस नबूवत की मोहर को खातमियत की क्या हुआ है, अब वो लेके इजरा फिरते रहे, तस्दीक फिरते रहे, तीनों कंडीशनें लगाते रहे, एक ही टाइम पे मोहर तीनों काम कर रही है, खत्म भी कर रही है, इजरा भी कर रही है, तस्दीक भी कर रही है, और भी और बड़े काम उन्होंने बता दिए थे उस मोहर से। जो तो मिर्जा साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं, बाद में मिर्जा साहब का कलाम पेश कर दे के फिटे मुँह आख दिए उन्होंने, मतलब उन्होंने तो इन करनी है, इनकार करना है, उन्हीं का करें। उसका पैंचर ये है कि अब मिर्जा साहब की किताबों के पीछे छुपते हो, कुरान हदीस से भागते हो। भाई हम इस बात से भागते हैं कि आपके जैसे जाहिल जो है, जो कि मकर लफ्ज नहीं बोल सकते, वो कुरान की आयत का मकर लफ्ज हमें बताएं। हाँ जी, हम इस चीज से भागते हैं। फहर से कुरान हदीस पेश करते हैं क्योंकि हमारा ईमान है इन किताबों पे। अब ये जब इनसे कहते हैं कि अपने जो आपके मानने वाले जिनको आप मानते हो उसकी किताबों से बात करो, वो कहते हैं नहीं हम तो नहीं करेंगे। कैसे फिर मानने वाले को ताजी ताजी जलेबियां निकलवाती हैं। हाँ जी, नवीद भाई को दसो टिकटॉक दी ताजी ताजी जलेबियां ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾਦਰ ਦੁਆ ਚ ਕੋ ਮੌਤ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋ ਹੋਰ ਨਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਅਪਡੇਟ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई कैसे हैं? मौज में हूँ, लेकिन खलीफा मेरे से ज्यादा मौज में है। खलीफे ने 500 यूरो नजराना फिक्स कर दिया है। हर जुम्मे के महफिल में अगर किसी ने अपनी अंगूठियां मिर्जा साहब की अंगूठी से टच करवानी है तो अपनी
खलीफे के पास लेके आए जुमे के बाद, 500 यूरो 500 पाउंड नजराना दें, और एक काले रंग के कपड़े के अंदर आप सब की अंगूठियां डाल दी जाएंगी, और उसके बाद मिर्जा साहब की अंगूठी जो है वो हर अंगूठी से टच की जाएगी, और फिर से वो बरकत अंगूठी आप लेके जाएं और उसके साथ आगे जाके बिजनेस कमाएं। बेशक आपको इजाजत है, वो दूसरी अंगूठियों को भी वो टच, वो फैज, वो बरकतें आगे डालें, उनसे चाहे 5-5 यूरो ले लें, ये आपकी मर्जी है। मैं लाया थे लवा पर मेरे को असली नोट नहीं। यार ये को बहुत फैसल भाई प्रॉफिट आप इस बात पर गौर करें ना। जी जी करें। अच्छा, मैं कहने लगा था फैसल भाई इस बात पर गौर करें कि बाबर और सीकर ने ऐसी अंगूठी से अंगूठी लड़ाई के मजा आ गया। ऐसे काम होता है, हर तरफ अंगूठी अंगूठी हो गई है। वो पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं अंगूठियां बिक रही हैं। अंगूठियां बिक नहीं रही भाई, ये नजराना सिर्फ मस करने का, जिसको मस नहीं कहा जाता, टच, ये टच है, बरकत वाली टच है। जी जी, बरकत ट्रांसफर हो रही है ना। वो रिवायत के अंदर कि वो जब इमाम सजदे में जाता था, क्या थी यार वो अल्फाज, वो मैं बल्कि वो निकाल के लगा के सुना दूं। बरकतें हासिल करना तो इनमें बड़ा मौजूद है यार, कॉन्सेप्ट है इनके अंदर बड़ा ज्यादा बरकतों का। किधर गई वो? हाँ जी, वो फरमाते फैसल हैं। भाई, जी जी, मैं सरकार अंगूठियां तो याद आया ਤੁਹਾਨੂੰ मैं याकूत गिफ्ट करना 100 साल पुराना। ਹੁਣ मेरे TCS ही कराना पैना। पहले बनया सी जी 100 साल पुराना है। उसमें वो फरमाते हैं रिवायत नंबर 903 सफ़ा नंबर 484 पे कि इमाम हुजरे में खड़ा होता था, ऐसा शख्स हुआ कि एक शख्स पर जुनून का गलबा हुआ, वो हुजूर के पास खड़ा होने लगा और नमाज में आपको तकलीफ देने लगा। अगर उसको पिछली सफ में जगह मिलती तो हर सजदे में वो छलांग, सजदे के दौरान सफ़े फलांग कर हुजूर के पास जाता और तकलीफ देता। कबल अजी के इमाम सजदे से सर उठाए वो अपनी जगह पर वापस चला जाता। ठीक है, फिर वो आगे जाके उन्होंने बताया कि ये तकलीफ उसने फिर कमरे में भी देनी शुरू की है, लेकिन मिर्जा साहब ने उसको निस्बतन अमन करार दिया है। और फिर जब ईद का भी उन्होंने लिखा हुआ है कि जुम्मे और ईद के मौके के ऊपर, क्योंकि हजरत हुजूर जो थे वो सफ़े अव्वल में इमाम के बिल्कुल पीछे खड़े हुए करते थे, वो शख्स वहाँ पे भी बाज नहीं आता था, लेकिन एंड में वो कहते हैं कि वो बहुत मुखलिस था और अपने ख्याल में इज़हारे मोहब्बत करता था और जिस्म पर नामुनासिब तौर पर हाथ फेर कर तबरक हासिल करता था। तो नामुनासिब तरीकों से तबरक हासिल करना ना सिर्फ ये कि इनके मिर्जा साहब के साहबियों की सुन्नत है, बल्कि इसमें मिर्जा साहब की तायद भी हासिल है। मिर्जा साहब ने उसको कभी माना नहीं किया। तो आजकल उनके खलीफा बरकतें बांट रहे हैं सर। एक आज यार मैं मदी गल कर रहे हो ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਣ ਬਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਣ ਦਿਓ ਸੁੱਟੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 500 ਯੂਰੋ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਗੜ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? की रसीद नहीं होती शार्प शूटर भाई, नजराने की रसीद नहीं होती, चंदे की रसीद होती है। नजराना गेट के ऊपर हाथ में ही पकड़ाया जाता है और वो खलीफा खुद नहीं पकड़ता, नकली नोट ले लेंदे ने, नकली खलीफा नोट भी ले खुद नहीं पकड़ता, सेक्रेटरी पकड़ता है। ਅੱਛਾ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? उन्होंने सेक्रेटरी खड़ा किया होता है अंदर कमरे में जाने से पहले, बाहर खड़ा होता है, दरबान कह लें उसको, सेक्रेटरी कह लें, जो भी चपड़ासी कह लें, जो उसको कहना है, वो उसका बना होता है। जिस तरह हर पीर ने अपने साथ एक बंदा पकड़ा होता है जो इकट्ठे कर रहा होता है, उसके साथ बैठा हुआ, वो खलीफा कादियानियों के पीर ने भी पकड़ा होता है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਬਾਂਦਾ ਰੱਖੂ ਹੁੰਦੀ ਵੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕਰੀ ਨਾ ਮਲਕ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦੇਗਾ? ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। पगड़ी दे विचों कान निकले। कादियानियों को गाली का जवाब आप गाली से देंगे, वो तो चाहते हैं, उनका नॉर्मल तरीका कार है गालम गलोच करना, ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल करना। आप उसको गाली का जवाब रेफरेंस के साथ दें,
इंशाल्लाह वो आपको उस पॉइंट के ऊपर गाली नहीं देगा नेक्स्ट टाइम। उसको पता होगा अभी इसने ये जो रेफरेंस पढ़ा है, मैंने नेक्स्ट टाइम ये गाली दी तो ये फिर लोगों को पढ़ के सुनाएगा। मेरे को 2 ताज़ा हवाले आए ना शिरक दे हवाले नाल, अगर कहो तो मैं पेश करा। करके पेश करो। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਪਾੜਨੀ ਹੈ, ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं, कोई मजाक नहीं कर रहा, बड़े अच्छे ऑथेंटिक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। पेश करो, लेकिन उस तो पहले मैं मलिक इमरान दे हवाले नाल, बहुत अच्छे इंसान ने, थोड़ी देर ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ तो आगा 2 ਮਿੰਟ ਦੋ ਮੈਂ ਫਿਰ जी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਲੈਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਢੂੰਢ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਢੂੰਢ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਲੈਸਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚਦਾ ਵਦਾ ਗੁਲੈਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਟ ਛੜ ਪਾਣੀ। ਆਦਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Yeah, definitely, bro. Bring him. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मलिक इमरान साहब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाए ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहचाना नहीं होगा मेरे ख्याल में, 2-3 दिन पहले मेरी और आपकी मुलाकात हुई है टिकटॉक पे। रहमानी लाडला से मेरी आईडी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं? ठीक हैं? बाकी सब दोस्त भी ठीक हैं? अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलिक कैसर साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? सोए हुए हैं। अच्छा जी शामा पै गई है ना उते। काम कर। अच्छा याद रखना कि रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पर, ये ना हो आपका पेश किया गया सलाम आगे कहीं पहुंच जाए। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की सर? मैं क्या सलाम कबूल ना हो जाए किधरे। चलो अगे जान दियो ना, गल टोरन दियो जी भाई, गल जा ऑब्जर्वेशन है, अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है मलिक कैसर साहब, इसलिए आपको फास्ती तदबीर बताई है। नहीं, किस वजह से? कोई बात नहीं है भाई, आप बात करें जो बात ख्यालात करना है। पूछे हजरत ईसा के बारे में, इनके ख्यालात पूछे इनसे, आपको भी पता लग जाएगा किस वजह से। अच्छा ठीक है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप किस फिक्र से ताल्लुक फैसल रखते हैं? भाई जान के ध्यान पवांदे ने। रहमानी साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जिला मंडी बावलदीन पंजाब। टिकटॉक ज्वाइन करते हैं ना, जिनको फतवों की शिद्दत और फतवों की ताकत का नहीं पता, मैं चाहता हूँ वो बेचारे लोग बच जाएं फतवों के अताब से, ये ना हो बेचारे रगड़े जाएं फतवे की जद में। इसलिए उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि यहाँ पर लोग बड़े खतरनाक भी फिरते हैं। जी जरूर। खास वैसे बेसिकली आप किस फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? मादरत माइंड नहीं करना। मेरी भाई फिका का नाम है खत्म नबूवत। माशाल्लाह पे सबका एक ही फिक्र है, खत्म नबूवत, बस ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा रहमानी भाई, एक काम आपके जिम्मे लगा रहा हूँ, अगर मंडी में कहाँ वहां पर कोई जिली बरूजी तो ढूंढना, हो सकता है मैं तो ढूंढ रहा हूँ हाँ हो सकता है वहां पर ना हो यार, मेरे जिम्मे ये काम लगा है, इन दोस्तों ने लगाया है। मैं तो यहाँ पर सारी छानबीन की है टॉयलेटों वगैरह में, मंडी में नहीं है यार जिले बरूजी। ते हो सकता है वो आपके पास मंडी में हो। क्या मलिक साहब बता रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आई? जिली बरूजी ढूंढना है आपने। वो क्या होता है? वो होता है जिसका
वजूद ही नहीं है। नहीं ऐसी तो बात नहीं है ना। जो हकीकी नहीं होता, यानी कि बस गप शप में होता है। जैसे बचपन में हम वो इलेक्शन खेला करते थे ना, वोट डाला करते थे, बिल्कुल बरूजी भी ऐसा ही होता है। अच्छा अच्छा, क्या बात है आपकी फिर तो। नहीं मेरी बात सुने, आपने मजाक में बात डाली है वैसे ही हकीकत में की यार बात ये है। रियलिटी है, रियलिटी बयान कर रहे हैं, रियलिटी बयान कर रहे हैं, उसको मजाक के हिसाब से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा एक मैं आपसे सवाल करता हूँ, हकीकी और गैर हकीकी में दोनों की अगर आपको डेफिनेशन करनी पड़े तो आप कैसे करेंगे? ये तो अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरी पहली मुलाकात है आपसे सब लोगों की। हकीकी गैर हकीकी को छोड़े, रियल और अनरियल में क्या फर्क होता है रहमानी भाई? यही बता दें चले, रियल और अनरियल में क्या फर्क होता है? किस हवाले से पूछ रहे हैं ये भी बता दें जरा। किसी हवाले से भी नहीं, सिर्फ आपने इसको करना है इसको कि रियल हकीकी, इस हकीकी किसको कहते हैं और अनरियल गैर हकीकी ये किसको कहते हैं? हकीकी तो वो है जिसने मतलब के जैसे समझ लें कि बका रहना है, बका अल्लाह की जात ने बका रहना है, वो हकीकी है, ठीक है। और हम जो लोग हैं वो हकीकी नहीं है, ठीक है, समझ आई बात में? मलिक साहब सेटिस्फाइड हो? एक मिसाल के तौर पे एक जुमला है कि ये एक हकीकत है कि रहमानी लाडला बहुत अच्छा बच्चा था, ठीक है। जी जी जी। अगर आप ये असल बात भाई गलत हो, रहमानी लाडला अच्छा बच्चा ना हो, शैतान बच्चा हो, तो लोग कहेंगे जी ये गैर की बात है जो की गई है। आपको समझ आई है? नहीं, ये लोग कहेंगे ये बात गैर की गई है, नहीं रहमान उनसे लाडला पूछ तो लेना। शरारती बच्चा है, वो किस तरह अच्छा बच्चा है? तो ये मतलब अब आपको समझ आ रही है, आपसे जो हकीकी और गैर हकीकी पूछा जा रहा है किस सेंस में कहा जाता है? मुझे यार आपकी वो बात की समझ नहीं आई। उन्हें समझ नहीं आनी इस तरह। भाई आप अपनी बात करें, छोड़ो इनको। आप सीधी सीधी बात करें। भाई अब आपसे एक क्वेश्चन फिर मैं भाई करने लगा। आसान पूछ लो ना, रहमानी और हकीकत गैर किसको रहमानी। कहते हैं? सीधी सीधी बात है, हकीकत किसको कहते हैं? हकीकत का रहमानी क्या मतलब और होता है? गैर रहमानी। हकीकत का क्या मतलब होता है? हकीकत का हकीकत जी और गैर हकीकत, जी। ठीक हो गया। ओ भाई आसान लफ्जों में असल और नकल में क्या फर्क है, बस ये बता दें आप, छोड़ें। नहीं, अगर नहीं आपको पता तो आप कहते नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे कोई क्विज नहीं हो रहा, आपसे वैसे पूछे। आपको नहीं पता हकीकत का क्या मतलब मैं होता है? दसे ना हकीकत है कि मैं हकीकत हाँ ते अगर कोई मेरी फोटो कॉपी बनाता है ओ जनाब गैर हकीकी हो सी। वाह। रहमानी भाई, यार नहीं है, हकीकत का सवाल मतलब जवाब होता है, नहीं। हकीकत का मतलब होता है कोई हकाइक पे मबनी बात। समझ आ गई? मैंने आपको मिसाल भी दी थी, हकाइक पे मबनी बात, और आपको हकाइक पे मबनी बात भी एक बयान की थी कि रहमान लाडला बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन अगर हकीकत इसके बरक्स हो, हकाइक इसके खिलाफ हो, और रहमानी लाडला बड़ी शरारतों में मुलव्वस पाया जाए, शैतानी काम में मुलव्वस पाया जाए, तखरीबकारी में मुलव्वस पाया जाए, दूसरी चीजों में मुलव्वस पाया जाए, तो फिर कहा जाएगा कि ये बात हकीकत के खिलाफ है कि वो अच्छा बच्चा है। गैर हकीकी बात आपने की है। अभी आपको समझ आ गया? अब अगर कोई शख्स कहे क्लियर हुआ, अभी बताएं हकीकी गैर हकीकी क्लियर हुआ कि इसके ऊपर मजीद और कोई मिसाल दे के आपको समझाऊं? नहीं ठीक है, क्लियर हो गया है। चलें। अच्छा फैसल भाई, हमारे हो जाग गए हैं, उनसे हकाइक बात पे करें। मबनी बात, और नहीं जो मैं बात हकाइक पे मबनी ना हो, सिर्फ मुंह का मफरूजा हो, सिर्फ मुंह का कलाम हो, उसको क्या कहा जाएगा? गैर हकीकी। बहुत शुक्रिया। हैदर वड़ाज भाई को काम चुड़िया के ਜੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ नहीं नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। मैं ना खाना खाने गया था, आज मैं बनाया सी अपना आलू गोश्त। दिस इज माई फेवरेट। बनांदा वैसे मैं जुम्मे वाले दिन आ, खुद बकलम, ते ओ मैं क्या जरा नोश फरमा लईए। रात ते हो गई है, राती खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो। ते मलिक साहब विख्या है उदे जिली बरूजी में तो तुम लभदा होवे। नहीं नहीं नहीं, असी इत्थे अमेरिका वाले पासे बिल्कुल कोई भी नहीं है। आ उत्थे ठंड पौंदी हो तो मेरे ख्याल ठंड ज्यादा होंदी है ना?
ਠੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬੂਦੀ ਢਾੜੀਏ ਉਹ ਢਾੜੀ ਉਹ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਚਲ ਇਧਰ ਰਾਜ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਬਾਈ ਤੇ ਇਧਰ ਰਾਜ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕਿ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਖਬਰ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਮੁਲਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਛਾਣਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਭੇੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ। ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਭੇੜ ਏ, ਕਾਲੀ ਭੇੜ ਏ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਲੀ ਭੇੜ ਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਭੇੜ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਲੀ ਭੇੜ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਭੇੜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲ, ਹਕੀਕਤ, ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੜਨੀ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਬਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੁਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਭੇੜ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਕੰਸਰਨ ਫੈਸਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਦੇ ਦਾ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਕੈਸਰ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ Oh ਦਿਓ। no, sorry bro, you can't do it. ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਟਾਕ ਬਿਸਮਿल्लाह, ਬਾਤ ਕਰੇ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਬਰ ਔਰ ਹੌਸਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਸਕੈਨਰ ਸੋਹਣਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪੈਣਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਹੈ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 50,000 ਦਾ? ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰਾ ਖੋਤਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੋਨੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਥੇਗੀ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤ 50,000 ਰੁਪਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 60,000 ਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਦੇਖੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਚੜ ਜਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਨਜ਼ਰ ਆਈ?
ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਇਹ ਜੰਨਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਵੇਲਾ ਆਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਕੱਬਰ, ਬੁਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ, ਹਸਦ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਤੇ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ FIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 99% ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪੜ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਵਾਲੇ ਪੜ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਲਿਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, यही आखिया ना तानू कैसर भाई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा सुनो, मैं बात ये है कैसर भाई, हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पर किस लिए आते हैं, हम किस लिए बात करते हैं कि हमारी बात दूसरों तक पहुंचे। अगर कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुन रहा। ये जिसको आप काली भेड़ और मुखबर कह रहे हैं, ये हमारी बात जो हम चाहते थे कि लोगों तक पहुंचे, रिकॉर्ड करके जाके दूसरों को शो लगा के सुना रहा है। हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, यार हमारी बात कर रहा है। हाँ, अब आपका फर्ज है कि आप अपनी जुबान से कलाम ही वो निकालें, आप अपनी जुबान से बात ही वो निकालें जो हो ही हक, जो हो ही सच। वो जहां पर मर्जी को जाके मुखबर सुना दे, आपको फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। मतलब कैसर भाई मकसद समझे, इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि आपको जरूरत, आप लोगों का तो ये रिकॉर्डिंग वाला काम अब शुरू हुआ है ना, ये सारी उम्र नदीम आएगा, नदीम से पूछना, मसूद भाई आएंगे, मसूद भाई से पूछना, एक्सेलेंस से पूछना, नासिर भट्ट साहब से पूछना। ये अहमद सुल्तान का सारी उम्र काम ही यही रहा है। ये अहमद सुल्तान नहीं आता, इसका काम ही यही रहा है कि हम लोग जब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई बात हो रही है, उनके ऑडियो क्लिप निकाले, रिकॉर्ड करे और जाके दूसरे सारे जगहों पे हमारे मुखालफों में, ये देखो ये क्या कह रहा है, ये देखो ये क्या कह रहा है, इसकी पकड़ करो, इसकी पकड़ करो। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है मतलब कैसर भाई कि आप कलमा ही मुंह से वो निकालें, बात ही मुंह से वो निकालें जो हक की हो, मयूब ना हो, जिसकी वजह से आपको कभी शर्मिंदगी ना हो। सईदना अली जी आप फरमाएं, बात करें कैसर भाई। नहीं अहमद सुल्तान कौन सा ला? मैं हवाला देना सी पर मैं डर गया, मैं हवाला भी नहीं पढ़ना रिकॉर्डिंग। मैं तानू कितनी देर पहले किया सी पढ़ो वाला, तुसी क्यों नहीं पढ़िया? चलो अहमद सुल्तान कौन सा वाला, आप जवाब ही नहीं दे रहे मेरी बात को। नहीं आता इधर, आपको अहमद सुल्तान का नहीं पता? टिकटॉक का सबसे बड़ा इस वक्त वो बंदर बना हुआ है, कमाल है यार। दसो इन्हें अहमद सुल्तान केड़ा यार।
احمد سلطان فتح گروپ. अच्छा अच्छा अच्छा, उसने मुझे मैसेज किया है. احمد شیطان جنوں میسج دینا आज आपके लिए बड़ी बुरी खबर है, पता नहीं केड़ी खबर है ਉਹਦੇ ਕੋਲ. وہ کہندا ہے کہ میری عزت کریا کرو, میں اس طرح دعا ہی کرتا پارٹیاں ہے. درمیان جج, دعا پارٹیاں درمیان جج ہاں, تے میں پھر فیصلہ دے دینا انہاں دے حق, پھر اے تسی رونا ہون اے ہون تو جج آکھ رہا ہے ایک کوئی تھوڑا جا عرصہ ٹھہر جاؤ, ایسی آکھنا کہ میں نبی ہاں. ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ. ਲੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਐਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ. ہاں شعیب بھائی ہوں تھوڑی واری ہے. میں صرف وہ بات کرنے کا مقصد وہ تھا کہ نہیں. ہن تسی حوالے دا پہلے پیمنٹ کرو پھر میں حوالہ دیاں. جس طریقے سے آج ادھر کیس بنا ہے نا ابھی میری بات اور کہ عدالت بدنام لگی جو ہے. ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ تو آپ بات ہی حق کی نکالیں منہ سے, صحیح بات نکالیں, غیر معیوب بات ہو ہی نہ, ٹھیک ہے, سوری غیر معیوب بات ہو, کوئی اس کے اندر عیب نہ ہو, تو وہ جہاں پر مرضی کو جا کے پلے کرتا پھر آپ کی بات. ہاں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ کوئی بات آپ کی کانٹ چھانٹ کے آؤٹ آف کانٹیکس پیش کر رہا ہے, تو وہ آپ ان کے جو بڑے ہیں, جو جن کی وہ بات سنتے ہیں, ان کی خدمت میں مدعا پیش کریں کہ سر یہ آپ کے دوست جو ہیں, آپ کے جو مرید ہیں, یہ اچھا کام نہیں کر رہے, بات کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش کر رہے ہیں, آپ ان کی تھوڑی سی اصلاح کریں. وہ ان کی اصلاح کریں گے تو زیادہ اچھا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو کنورٹ کریں. نہیں آج جس طریقے سے عدالت لگی ہوئی تھی نا ادھر علیم بھائی کی براڈ پہ, میں اس کی بات زیادہ مین کر رہا ہوں کہ اس میں صرف آپ دیکھ لو کہ بینیفیشری کون ہے, بس وہ اسی کا سارا قصور ہے. خواہ کوئی اپنے نام کے لیے کرتا کہ ہے نا کیا. اس عدالت کے اندر وہ بات ٹھیک چل رہی تھی, میں نے آپ کو بتایا, لیکن جس وقت رائتا بنانے والے بیچ میں شامل ہو گئے نا, ٹونی امجد صاحب جیسے اور کالو جیسے اور دوسرے بھی ایک دو, انہوں نے پھر وہ اپنا بندہ نکلوانا ہی تھا نا, وہ نکال کے لے گئے مکھن میں بال کی طرح. ہاں یہ بات سب نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. طاہر خان دیکھو ایک بات بتا کے جانا, اور بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے اور ہماری باتیں سن رہے. عبداللہ ایک منٹ, 1 گھنٹے سے تو ہماری باتیں, کسی نے ایک گالی مرزا صاحب کو دی ہے یا ان کے خاندان کو یا ان کی کوئی توہین کی ہے؟ بتا کے جانا طاہر خان. وہ یار تھی. یہ کون ہے یاہو والے, یہ کافی یہ دیر سے کہہ رہے قادیانی ہیں ہے نا کال کا. یار, نہیں کی. ہاں ابھی یہاں پر اگر ہم لوگوں کو پرووک نہ کیا جائے طاہر خان, ہم لوگوں کے اکابرین کی توہین نہ کی جائے, تو ہم یہاں پر کسی کے اکابرین کی توہین کرنے نہیں آتے. ہم یہاں پر علمی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنے کے لیے آتے ہیں, علمی خیالات ایکسچینج کرنے کے لیے آتے ہیں احسن طریقے سے. ہاں کبھی فن مذاق بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی گالم گلوچ کسی کی توہین ہم نہیں کرتے. ہاں جب آپ ہماروں کی کرو گے پھر جواب میں ہمارے پاس ہر چیز تیار ہے. تو یہ چیز آپ لوگ اس چیز کا خود بھی مشاہدہ کرو, اور جو آپ کی جماعت کے دوست ہیں, جس طرح آج علیم کی لائف کے اوپر, وہ سوری علیم کی وہ لائف نہیں تھی, وہ طلعت عوان کی لائف تھی, اس پہ جس طرح کی عدالت لگی ہوئی تھی, اس میں آپ بھی یہ گواہی دینا کہ میں مسلمانوں کی محفل میں جاتا ہوں تو وہ بلا وجہ نہیں وہاں پر کوئی گالم گلوچ ہو رہی ہوتی جب تک وہ خود سٹارٹ نہ کرے. شکریہ. عادل رائے صاحب کدھر گئے؟ عادل وڑائے صاحب کدھر گئے؟ بی سی ہو گئے ہوں گے, یا ان دوستوں کو آ گیا ہوگا واٹس ایپ میسج. آپ کیا کام کرتے ہیں فیصل بھائی؟ پروفیشن کیا آپ؟ فیصل بھائی ہیں جی؟ باتیں نہیں آپ کا پروفیشن کیا ہے انگلینڈ میں؟ یہی میں بتا رہا ہوں, فیشن میں باتوں کی کھاتا ہوں, باتیں کرتا ہوں, موٹیویشنل سپیچز کرتا ہوں, اس کی مجھے کمائی آتی ہے. اچھا, ویری گڈ. پاکستان میں آپ کہاں سے ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم. لاشیاں اندرون موچی گیٹ سے ہوں, گوال منڈی سے بھی میرا تعلق ہے, کرنٹ رہائش ماڈل ٹاؤن میں ہے پچھلے کوئی لاہور 30 سال سے. لاہور 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 لوڑ لوڑے لوڑ لوڑے لوڑ نے تکیا جمیا نہیں. السلام علیکم پیر اسکانی صاحب. وعلیکم السلام. خیریت ہے بھائی؟
पीर साहब आज آپ आपसे سنائیں شاہ جی ٹھیک ہے؟ आपसे मैंने एक बात जुमा पूछनी है। बखैर जुमा मुबारक आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही भाई, क्या कह रहे हैं? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है भाई। आप ये बताएं कि आप कोई जिन्नात वगैरह का इल्म भी रखते हैं? मैं इतना इल्म रखता हूँ कि जन्नात एक मखलूक है अल्लाह की, और वो मौजूद है इसी दुनिया में, और उनमें अच्छे और बुरे जिस तरह इंसानों में हैं वैसे लोग मौजूद उनमें मौजूद है, इतना मैं जानता हूँ। हाँ, वो हमें नज़र नहीं आते अपने हकीकी शक्ल में, जब तक वो अपने हकीकी शक्ल में हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो शक्ल बदल सकते हैं। जब वो शक्ल बदल दें तो वो अगर दिखाना चाहें अपने आप को तब वो आप उनको देख सकते हैं। और बदमाश किस्म के जिन्नात जो है वो नुकसान भी पहुंचाते हैं लोगों को, कोशिश करते हैं डरा के ये वो, तो इस तरह की बातें ये चीज़ें साबित हैं। नहीं, बात लोग होते हैं ना जो आमिल होते हैं, जी ऐसा आपका कोई सिलसिला तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। जी भाई। अच्छा भाई, ये जो बात चल रही थी ना हमारी जी जी अभी, गालियों की जो बात चल रही थी, जी जी देखें हम ये समझते हैं कि हमारे अकाबरीन सबसे आला अरफा, और इसमें दो राय नहीं, यही हमारा अकीदा है और इसी को हम 100% सच मानते हैं। और अकाबरीन में हमारे सबसे आला अरफा जो सैयद अल-बशर हैं वो नबी अलैहिस्सलाम हैं, हमारे रसूल हैं, आका हैं। उनके बाद नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन की जो है वो हैसियत है उनकी तमाम मुसलमानों के लिए। फिर आल है नबी अलैहिस्सलाम का, उनका मकाम बहुत ही आला, बहुत ही अरफा। और सहाबतुल किराम अल अतहार, उनकी मोहब्बत। फिर साइर अल अखयार जो हमारे हैं उन सब से हमें मोहब्बत है, और हम उनकी बात जो है वो बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते। और उस वक्त इंसान जो है गुस्से में, जज्बात में आ जाता है जब इनकी तरफ कोई बात कर लेता है, कोई भी बात हल्का सा भी हो, तो गोया कि कभी ऐसा भी आपने भाई देखे होंगे, अगर हज़रत नहीं कहा किसी आलम के बारे में तो गुस्सा आ जाता है कि भाई ये आपने हल्केपन का मुजाहरा किया, ये क्या है, हज़रत साथ लगा लीजिए। यानी मोहब्बत और ईमान का जज्बा इतना है। अब आप देखें, इनको अगर कोई कुछ कहेगा तो पड्डे होंगे, झगड़े होंगे। याद रहे बाइन ही यही मामला दूसरी तरफ है, इस बात को आप अच्छी तरह से जान जाएं, यही मामला दूसरी तरफ है। तो वो ये कहते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हुआ यहाँ, पहले व्हाट्सअप था, उससे पहले पता नहीं कौन सा पल था, ये पल था, वो पल था, पलों का चक्कर चलता था, उर्दू पल और ये पल और वो पल। समझ रहे हैं मेरी बात को? मुफ्ती साहब का, पीर अस्कानी साहब का शोर बहुत आ रहा था। और मलक इमरान साहब, इन्नी खामोशी क्यों है तुम्हारी तरफ? कोई गल बाओ। नहीं, मैं सुन रहा शायद बड़े बुजुर्ग गल कर रहे हो तो अस जरूर टर करनी होंगी के यूसुफ भाई साहब भी क्या जिली ब्रूजी यार, मैं जिली ब्रूजी ढूंढना।
غیر حقیقی. हाँ मलिक साहब, आवाज आ रही है मेरी? اب آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. हाँ, उसमें थोड़ा सा मसला बना हुआ. बहरहाल तो ये बात इंशाल्लाह क्लियर हो गई कि जिस तरह से हमारा अकीदा और ईमान है, अपने अकाबरीन के बारे में मोहब्बत है, वह वैसे ही दूसरे तरफ है. होता क्या है कि जो गाली गलौज करते हैं, पहल करते हैं, तो चंद लोगों को हम जानते हैं, चंद को शायद आप नहीं जानते. एक तरफा बात कभी होता नहीं, समझ रहे हैं? یہ تو तो ये बदमाशियां कुछ लोग जी یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی ہے آپ نے. कुछ लोग उनका वतीरा यही रहा है. आप देखेंगे कि बस गाली दो और खामखा की बदतमीजी करो, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं. तो वैसे दूसरी तरफ भी हैं, समझ रहे हैं? असल में वो लोग बड़े जो है वो अभी चुस्त हैं, उनको उन्हीं को आप समझ लीजिएगा कि ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है, और वही लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं. अब बीच में कुछ लोग होते हैं कि उनको भी गुस्सा आ जाता है इन चीजों को देखकर. तरफेन, हालांकि ये गालीबाज है पार्टी, वो अलग है, दोनों अतराफ में मौजूद हैं और फायदा उनको ही पहुंच रहा है. यानी वो बड़े चुस्त हैं, आते हैं, अपने जवानी दिखाते हैं, अपना ईमान का इजहार गालियों के उसमें करते हैं और ये कहते हैं कि भाई मैं घर तक तुम्हारे आ जाऊंगा. कल वो कह रहा था, जो सैफी है जिन्होंने सैयदात को गालियां दी, वो कह रहा था कि मैं तो हर जगह यही कहूंगा. हालांकि ऐसा नहीं कहेगा, साया देख ले कि यहाँ देखो ये मुसलमान का साया आ रहा है, उस वक्त वो छुप जाएगा. हकीकत यही है. इसी तरह ये जो बदमाश किस्म के जो मुसलमान अपने आप को ईमानदार कहते हैं, ये भी इनको मालूम हो जाए कि वो पिलाना जो है साया है वो कादियानी का होगा, उस वक्त गाली नहीं देगा. क्योंकि भाई इतना तो ईमान को हर आदमी रखता है, कोई भी हो, या तुझे मारेगा या खुद जो है आप उसको मार देंगे. हमला तो करेगा. भाई किसी बिल्ली को आप घेर लो, दो चार आदमी किसी गली में, वो भी आपको नाखून माखून मार के जख्मी कर देगा, भले आप उसको कत्ल करें. ये तंगामत व जंगामत. तो आमने सामने ये नहीं करते. यहाँ कल कह रहा था, भाई घर में जाऊंगा इसके नजफी के, इसके मातम में जाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, हर जगह यही गालियां दूंगा. क्या ये कर सकता है? नहीं. सिर्फ दिखाना ये चाहता है कि ये बहुत बड़ा दिलेर है, बहुत बड़ा बदमाश है, लेकिन समझदार जानते हैं कि ये बचकाना किस्म का आदमी है, छोड़ो, दफा करो. तो होता क्या है, दूसरी तरफ जब ऐसी बातें होंगी, दूसरी तरफ भी शदीद गाली जब दे देंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वो भी झगड़े में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं अपनी ईमान की वजह से. तो हल्ला गुल्ला शुरू. इनको बिल्कुल अहमियत मत दे दीजिए. ऐसे लोग जब आते हैं इनको कॉल पर मत लीजिए. दोनों अतराफ के लोग ये जान जाएं, गाली गलौज से कोई फायदा नहीं, ये कोई ईमानी जज्बा नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा. जिद, अनाद और जो संडास जो है होगी माशरे में हमारी गुफ्तगू के दरमियान, और कुछ नहीं. भाई सफाई करो ऐसे लोगों का, बात ही खत्म. इतनी सी बात है और कुछ नहीं. मैंने गाली दे दी तुमको, ऐसे भी मैंने सुने, मैंने गाली दी है तुमको, तुमने मेरे पिलाने अकाबिर को क्यों कहा? भाई तुमने मुझे गाली दी, मुझे इतना तैश आया. तो तैश में तो इंसान जो है वो अपना अक्ल और हवास को देता है, तो कुछ भी कह जाता है. बाकायदा सैफी जो मुअल्लिम बना हुआ है, इसने पर्सनल में खूब गालियां दे रहा है हमारे उलमा को, आमिर नजीर को. मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि सैफी जी ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं, गाली क्यों दे रहे हैं? नहीं मानता नहीं. फिर मैंने इनको सिर्फ इतना कहा कि देखो अब जवाब में मैं आपके अकाबरीन को कहूंगा और उस अकाबिर को कहूंगा सबसे बड़ा जो आपको बहुत तकलीफ होगा. इसको उसने गाली समझ लिया. कहता है देखो आजका नहीं कहता मैं गाली दूंगा, गाली दूंगा. भाई मैंने तुम्हें खबरदार किया, मुझे तकलीफ हो रहा है. कहते नहीं, अगर तुमने गाली दी ना मुझे दो ना, मैं तो गाली दे रहा हूं तुमको. ये है बस, गाली एक दूसरे को दे दी जाए. जितनी गाली मैंने तुमको दी है वो देखो ये क्या तरीका है, गाली ही मत दे दो. जब इंसान गाली देना शुरू कर देता है, हकीकत यही है भाई, आपने मुझे मिसाल के तौर पर गधा कहा, मैं आपको गधा कहूं. अगर जवाब ही देना है, आपके वालिद को क्यों कह रहा हूं, किसी बड़े को क्यों कह रहा हूं?
हकीकत तो यही है। लेकिन गाली देना क्या जायज है कि मैं तुझे गधा कह रहा हूं, तुम वापस जो है गधा कहो? गाली ही मत दे दो। जब गाली गलौज शुरू हो जाती है तो इंसान पागल हो जाता है, पागलपन में जो भी उसके मुंह में आता है कह देता है, ऐसा ही है। तो ये ऐसे लोग हैं जो दावत तबलीग का काम है तरफैन, वो डिस्टर्ब है। बस जब भी आओ गाली दी, उसने गाली दी, इसने गाली दी, इन दोनों को। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपने जो गालीबाज हैं उनको बचाने के लिए हर किस्म का झूठ बोल देते हैं, हर किस्म का झूठ बोल देते हैं, जो अपने नजरों से भी गिरते हैं और दूसरों के नजरों से भी गिरते हैं। ये कोई अच्छा रोल नहीं है। मलिक साहब, आप मेरे भाई हैं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैंने एक गलीज हरकत की, अब आप मुझसे बड़ा मोहब्बत करते हैं, अब आपको बुलाया गया है कि भाई ये देखो आस्कानी ने ये हरकत तो की है, अब आप वहां पर तावीलें शुरू कर दें, मुझे बचाने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं और काजिब भी साबित हो रहे हैं, सारा कुछ। ये क्या आपकी शख्सियत है? ये क्या शख्सियत है तुम्हारी? आपको सच बोलना चाहिए। तो अपनों को बचाने के लिए इंसान इतना गिर जाता है, अपने नजर, दूसरों को छोड़ दो। जब आप गलत बयानी कर रहे होते हैं ना तो अपने नजरों से गिरते हैं कि ये क्या, क्योंकि वहां दिल में कोई ऐसी चीज है, आपके बदन में, आपके जिस्म में कोई ऐसी चीज अल्लाह ने ऑलरेडी पेवस्त की हुई है, जो इन अल्फाजों और या इन अंदाज इस तरह बयान हुआ, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। ये देख लें, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। ये है वो चीज। भाई ऐसी कोई चीज है कि अल्लाह पाक ने इल्हाम की है, पेवस्त है, गिवन है अल्लाह पाक की तरफ से, कि वो फुजूर को भी समझता है और सही चीज को भी समझता है। आप सही बयानी कर रहे हैं, कोई दूसरा छोड़ दें, आपका दिल ही गवाही दे रहा है, शाबाश सही गवाही दे रहे हो। दूसरे तो बाद में बोलेंगे, लेकिन जो चीज गिवन है अल्लाह पाक की तरफ से, इल्हाम है, पेवस्त है, वही कहेगा तुम्हें, तुम सच्चे हो। लेकिन जब झूठ बोल रहे होते हो, वो आपको टोक रहा होता है, क्यों ऐसा कर रहे हो, ये तो झूठ है, झूठ है, ये मत बोलो झूठ। लेकिन फिर आप क्या करते हैं? खद खाब मन दस्सा। उस वक्त आप नाकाम और खसारे में हैं, क्योंकि आपने दस्सा, आपने उसको दबा दिया, उसका गला गोड़ दिया। उस सच्चाई का जो आपकी तरफ, अल्लाह पाक की तरफ से, वो जो रोशनी थी, जो टार्च था आपका, जो बत्ती थी, आपने उसको क्या कर दिया? उसको गुल कर दिया। तो खायब हुए या नहीं हुए, खसारे में हुए या नहीं हुए, लोगों के दरमियान क्या आपकी शख्सियत आ गई? ये घटिया आदमी झूठ बोल रहा है, देखो, और आपका दिल भी जानता है कि आपने झूठ बोला। तो इन हरकतों से बचो, ऐसे गलत गवाहियां मत दो। जिसने भी गलती की कहो इसकी गलती है, मानने वाला तो कोई भी नहीं, लेकिन अपने आप तो मुतमईन रहो, लोग जानते हैं, भले आपको झूठा कहें, लेकिन वो, उनका दिल जानता है कि ये बंदे ने यहाँ पर सच्ची गवाही दी। तो ये है मेरे भाई, कोई करो बस गाली दी गाली दी गाली दी और लोगों को गाली दे दो। और ये दावत और तबलीग का, और अपने आप को बहुत बड़ा दिलेर और बहादुर, मेरा खानदान, मेरा वो, कौन जानेगा कि फिर आपका जो है बाप जो है वो सुल्तान है। छोड़ो इन बातों को, होगा तो आप सुल्तान होंगे, लेकिन सुल्तान ने आपको यही तरबियत दी है, और आपकी बहादुरी और आपके पास जो माल है या जो इल्म है, आपको यही उसने जो है तालीम दी है कि ये आप गाली गलौज करो। ये क्या है भाई? बहुत शुक्रिया जी जी। ठीक है यूसी भाई, फिर रुखसत डालते हैं, आप भी सो जा रहे हो? तलत मलक साहब के पास चलते हैं, मैं ख्याल उनकी लाइव ऑन है। किधर? तलत मलक। हाँ ठीक है, ठीक है, चलते हैं वहीं। हाँ जज़ाक। चलो ठीक है। ओके यूसी भाई।